Yes. So we are going to understand basics of time, speed and distance, right? एकदम basic हम देखेंगे क्या होता है. So tell me, if you travel at 60 kilometers per hour, right? If you travel at a speed of 60 kilometers per hour, right? And you travel for 3 hours. So what is distance you are going to cover? कितना distance आप चलोगे अगर आप 60 के स्पीड से चल रहे हो 3 घंटे? What distance you are going to cover? You will be covering a distance of 180 kilometers. So what you did here, क्या किया आपने यहाँ पे? This was your speed, right? ये आपका speed था, ये आपका time है, right? So you multiplied your speed with time, right? तो ये speed से इतना time चलोगे तो इतना distance आप travel करोगे, right? There is no need to remember formula. सिंपली सोचोगे 60 के स्पीड से 3 घंटे चलेंगे तो 180 का डिस्टेंस कवर होगा. दिस मींस स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट? और स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैं s यहाँ पे रखता हूँ, t यहाँ पे लेके आता हूँ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दिस बिकम्स योर फॉर्मूला. ठीक है, क्लियर? रिमेंबर, याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली ऐसे सोच सकते हो. दिस इज 3 आवर्स, 3 घंटे. ठीक है. सो अगर मैं बोलूं कि आपका स्पीड है, आपका स्पीड है 75 किलोमीटर्स पर आवर एंड यू नीड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर्स, तो कितने घंटे आपको लगने वाले हैं? कितना टाइम लगने वाला है टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस विद दिस स्पीड? Very good, Sagar. Right. So we know time is equal to 300 kilometers चलना है and we are traveling 75 kilometers per hour. 75 kilometers per hour के हिसाब से we travel. So 25 3 is this. 25 1 25 2 is this. 3 4s are 12. So you are exactly you would exactly take 4 hours to travel this much of distance with this much of speed, right? Abhishek, there is no need of around 15 minutes. Why you are taking that? Understood? Clear? बोलो, ये क्लियर है? ओके ओके, ठीक है, चलते. So basics of THD, units of conversion. So 1 kilometer is equal to this much. Why? I'm just telling you first one, बाकी बताने की जरूरत नहीं, ध्यान दो, पहला वाला समझ लो. 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स होते हैं? 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर्स होते हैं? वेरी गुड आदित्य, 1000 मीटर्स. ओके. एंड 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600. वेरी गुड. So when we say 1 kilometer per hour, right? So 1 kilometer per 1 hour, इसका मतलब ये होता है 1 kilometer per 1 hour. So in 1 kilometer we have 1000 meters, right? And in 1 hour we have 3600 seconds, right? ये 0 गया, 0 गया, 25 this, 218 is this. So 1 kilometer per hour is equivalent to 5 by 18 meters per second, right? तो जब भी आपको अगर स्पीड दिया हुआ है, लेट से आपका स्पीड है 72 किलोमीटर्स पर आवर और आपको है ना उसको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, राइट? ये जो स्पीड है उसको अगर आपको मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वी नो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू दिस, 72 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू, आपको सिंपली उसको 5 by 18 से मल्टीप्लाई करना है टू कन्वर्ट it into meters per second. So it becomes 18.1, 18.4 is this. So it becomes 20 meters per second. Clear? Clear? Right.
1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meters per second. So whenever you have speed in kilometers per hour, you can simply multiply that by 5 by 18 to get 20 or the speed in meters per second. Vice versa, if the speed is in meters per second like this, if the speed is in meters per second, right, you can multiply that by 18 by 5, because देखो ये 5 by 18 में अगर उधर ये साइड लेके जाऊंगा, लेट से ये 5 by 18 उस साइड लेके जाऊंगा, तो ये 18 by 5 होगा, मतलब मीटर्स पर सेकेंड इंटू 18 by 5 will give me kilometers per hour, right? So 30 meters per second into 18 by 5 will give me kilometers per hour. 5156 is this 108 kilometers per hour, right? I hope you are understanding this point. Everyone understanding this? Bolo. इसको लिख लो अच्छे से, एंड ये भी लिख लो, just for a general knowledge, 1 mile, you may hardly get this in mile or something, but just write it down. 1 mile is equal to 1600 meters, which is 1.6 kilometers. And 1 kilometer per hour can also be written as 5 by 8 miles per hour. लिखा इसको लिखा सबने? Yes, sir. Okay. चलते हैं. So tell me quickly what should be your answer. Conceptual questions, right? जैसे हम concept देखते हैं ना छोटा छोटा, उसके ऊपर एक दो questions करते हैं to make it very much clear, right? वो clarity मिलता है उसका हमें फिर. Mr. X crosses a 400 meters bridge in 2 minutes. Find his speed in kilometers per hour. Okay. तो अभी हमें किलोमीटर्स पर आवर में चाहिए, हमें कुछ मीटर्स में दिया है. What is this, by the way? Mr. X crosses 400 meters bridge. So this is our distance in 2 minutes. So this is our time, and we are asked speed in kilometers per hour. What we can do is there are 2-3 ways. There are 2-3 ways, right? हम क्या कर सकते हैं? स्पीड हम मीटर्स पर सेकेंड में निकाल सकते हैं. यस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये बार बार लिखते चलो. हाँ, बार बार लिखने से आपका फैमिलियरिटी बढ़ता है चीजों से, राइट? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो 400 मीटर्स चलेगा, कितने सेकेंड्स में चलेगा? कितने सेकेंड्स में 400 मीटर्स? 120 seconds, right? So can I say, excuse me, can I say this is my speed in meters per second? Can we say, can I name this? देखो, speed is equal to distance upon time. This is distance upon time. So can I name this square as speed in meters per second? मैं इसको नाम दे सकता हूँ क्या? ये पूरे इसको distance upon time को I can call स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड. और मुझे ये बात पता है कि अगर मेरा स्पीड मीटर्स पर सेकेंड में है, आई कैन कन्वर्ट इट बाय मल्टीप्लाइंग विथ 18 by 5 to get my speed in kilometers per hour. Are you getting my point? बोलो. This is our speed in meters per second. We can multiply that by 18 by 5 to get the speed in kilometers per hour. इसका फायदा क्या होता है? ये आपका टाइम पास कम करता है. मतलब यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा कोई डेसिमल में कुछ आ जाएगा, राइट? थोड़ा टाइम पास कम हो जाएगा. देखो, ये 0 कैंसिल हुआ, 5 1 5 8 is 40. ये 6 3 18 6 2 is this. ये 2 8 को डिवाइड करेगा, 2 1 2 4 is this. So अभी बचा क्या? 4 into 3
12 kilometers per hour. We got the speed in kilometers per hour as 12 kilometers per hour. Everyone understood this? बोलो, अगर किसी को कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज आस्क. वी आर strengthening our fundamentals of this topic. Clear है? Okay, great. चल गया. Try this. Let's see. Speed of the train is 60 kilometers per hour. Speed is given to us. If it travels a distance of 300 meters, okay, distance is given. In 12 seconds, time is given. Find the speed in kilometers per hour. Speed of the train. कुछ झोल हो गया क्वेश्चन में? Speed of the train. कुछ ये गलत है क्वेश्चन ना? क्वेश्चन गलत है. ठीक है, इसको भूल जाओ, ये स्टेटमेंट को भूल जाओ. यहां से ही क्वेश्चन है. ठीक है, ये ऑलरेडी स्पीड दिया है, वो इलॉजिकल है. If it travels a distance of 300 meters in 12 seconds, find its speed in kilometers per hour. So distance traveled is 300 meters. Time is 12 seconds. So whenever we see this distance upon time, whenever we see this, we know this is our speed. So this is our speed in meters per second. We'll multiply it with 18 by 5 to get our speed in kilometers per hour. Right? That is how it is simple. So ये सॉल्व करेंगे तो 6362 5 into 2 10 10 मतलब ये 0 जाएगा. 30 into 3 90 kilometers per hour. क्लियर बोलो. राइट, ये ऐसा सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जब भी आपको दिखता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो आपका स्पीड होता है. एंड व्हेन स्पीड इज गिवन इन मीटर्स पर सेकेंड, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर्स पर आवर बाय मल्टीप्लाइंग विथ 18 by 5. ठीक है, ओके. सो व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी? वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट. प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, एकदम अच्छे से समझेंगे हम लोग. आई होप सब लोग जाग रहे हैं ना मेंटली, राइट. ओके. व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. मतलब क्या, समझ लो. आपका अगर होम और ये कॉलेज है, राइट, होम टू कॉलेज, राइट, तो आपका डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज इज कांस्टेंट, राइट. लेट अस सी कि आपका ये होम सिटी, ये कॉलेज सिटी है, और अगर हमने लिया डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स का, ये डिस्टेंस है, राइट. अभी अगर आपका स्पीड है लेट से 50 किलोमीटर्स पर आवर, ये आपका स्पीड है. ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा आपका टू रीच फ्रॉम योर होम टू योर कॉलेज, राइट. टाइम लगेगा, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स का है, स्पीड आपका है 50 का, सो यू विल टेक 6 आवर्स, राइट. 6 घंटे आपको लगने वाले. ओके, ग्रेट. नाउ अगर आपका स्पीड डबल करते हो, आपका स्पीड अभी 100 किलोमीटर्स करोगे. इफ यू डबल योर स्पीड,
तो आपको कितना टाइम लगेगा टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, टू ट्रैवल दैट कांस्टेंट डिस्टेंस, यू वुड टेक 3 आवर्स ओनली। 300 का स्पीड है, 100 का 300 का डिस्टेंस है, 100 का स्पीड है, 3 ही घंटे में पहुंच जाओगे, राइट। मतलब टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, व्हेन यू multiply your speed by 2, your time will get divided by 2, your time will get divided by 2, right. Also if you divide your speed by 2, let's say if you divide your speed by 2, that means if you are making it, let's say 25 kilometers per hour, 25 kilometers per hour. Now, what is time taken to cover the same distance? So time is equal to distance upon speed. You will be taking 12 hours, right? So if you divide your speed by 2, your time will get multiplied by 2. Your time will get multiplied by 2. तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है किसी केस में, तो अगर आप आपका स्पीड बढ़ाओगे, अगर आप आपका स्पीड बढ़ाओगे तो आपका टाइम कम होगा इन इनवर्स प्रोपोर्शन, राइट। इनवर्स प्रोपोर्शन में मतलब इसको आप अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम 3 से डिवाइड होगा। इसको अगर आप 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे स्पीड को तो आपका टाइम 5/4 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद टाइम, व्हाटएवर। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोलो, ये पिक्चर क्लियर है? इसके ऊपर मस्त क्वेश्चंस बनते हैं एप्टीट्यूड में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एप्टीट्यूड में इसके ऊपर, ठीक है। सो लेट्स सी, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब क्या? देखो, आप अगेन होम टू कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, आपका स्पीड कांस्टेंट है, मतलब आपने जैसे ही वो एक्सीलरेटर लगाया, राइट, तो आपका स्पीड है लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका कांस्टेंट स्पीड है। तो मुझे एक बात बोलो, अगर आप 3 घंटे चलोगे तो कितना डिस्टेंस चलोगे? 3 घंटे कितना डिस्टेंस चलोगे? 150, वेरी गुड। अच्छा, अभी आपका ये स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, आप आपका टाइम जो है ना उसको लेट से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, राइट। तो 3 इंटू 4 12 घंटे हो गए। 12 घंटे चलोगे 50 के स्पीड से तो आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 600 kilometers. So if you multiply your time by 4, your distance will also get multiplied by 4. So can we say when your speed is constant, तो आप आपका time of travel बढ़ाओगे तो distance भी बढ़ेगा, right? In the same proportion, right? That's why when your speed is constant, distance is directly proportional to time. Getting clarity on this? बोलो, समझ रहा है? सिमिलरली जब आपका टाइम कांस्टेंट रखोगे कि आपको ये पता है कि भगवान ने आपको 3 घंटे दिए, ठीक है, 3 घंटे दिए ट्रेवल करने के लिए, ये फिक्स है आपका। तो आपका अगर स्पीड किसी दिन अगर लेट से 80 किलोमीटर पर आवर है तो आप कितना डिस्टेंस चलोगे? बोलो, टाइम इज कांस्टेंट नाउ, कितना डिस्टेंस चलोगे? 240 किलोमीटर। अगर आप आपका स्पीड डबल करते हो, आपको तो टाइम कांस्टेंट है, आपका स्पीड डबल किया तो आप अभी कितना चलोगे? 480, मतलब आपका डिस्टेंस भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज। सो ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी होता है और इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। आपके पास फॉर्मूला है ना, वही आपको समझाएगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुझे अगर ये वैल्यू कांस्टेंट रखना है, राइट, इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ आई इंक्रीज दिस वेरिएबल तो टाइम मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज टू मेक इट कांस्टेंट? ये अगर मैंने इंक्रीज किया तो ये मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलरली आई आल्सो हैव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं न्यूमरेटर बढ़ाऊंगा, मुझे अगर ये कांस्टेंट रखना है, ये वैल्यू न्यूमरेटर बढ़ाऊंगा और मैं अगर डिनोमिनेटर कम करूं तो ये वैल्यू तो बढ़ जाएगा, मतलब ये तो चेंज हो जाएगा स्पीड। इफ आई इंक्रीज or if I multiply numerator by 2, I have to multiply
denominator also by 2 to make this value constant or to make this fraction constant. So direct proportion, when speed is constant, direct proportion, when time is constant, direct proportion of speed and distance. ठीक है, अभी इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे देखते हैं और एक अच्छा सा क्लैरिटी और बढ़ा लेते हैं, राइट। ये क्वेश्चन देखो, ये आप इंडिया बिक्स वेबसाइट पे देखोगे, आप काफी एप्टीट्यूड टेस्ट में ये क्वेश्चन देखोगे, आर.एस. अग्रवाल बुक, क्वांटम कैट बाय अरुण शर्मा, जब आपके फंडामेंटल क्वेश्चन चलते हैं ना तो ये क्वेश्चंस आपके वहां पे दिखते हैं। फॉर प्लेसमेंट पेपर्स ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से, मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं ऐसे की ऐसे, ठीक है। कंपनीज प्लेसमेंट पेपर्स, एमबीए सीईटी के लिए सीधे क्वेश्चन है, कैट के लिए ये फाउंडेशन है आपका। कितने लोग यहाँ पे कैट के लिए प्रिपेयर करने का प्लान है उनका, एमबीए कैट के लिए? Okay, let's see. Walking at 5/7 of his usual speed. Okay, great. A boy reaches his school 6 minutes late. Find his usual time to reach the school. Now, see, we will be solving these type of questions. मैं आपको एक conceptual way पहले बताता हूँ, conceptual, और उसके बाद हम 5 सेकेंड्स का शॉर्टकट देखेंगे, 5 सेकेंड्स का शॉर्टकट, राइट, टू सॉल्व सच क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। नाउ वॉकिंग 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ बॉय रीचेस हिज स्कूल 6 मिनट्स लेटर। ध्यान दो, प्रोपोर्शनलिटी हमें पता है, इनवर्स प्रोपोर्शन वगैरह। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, क्या कुछ कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में? कुछ कांस्टेंट है इसमें, बोलो। स्पीड कैसे कांस्टेंट है? वो तो स्पीड उसने तो चेंज किया ना, 5/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, स्पीड तो चेंज किया उसने। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, यस, राइट, उसका घर से स्कूल का डिस्टेंस कांस्टेंट है इफेक्टिवली, राइट। वी नो when distance is equal to speed into time, when you increase this you have to decrease this to make distance value constant. एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक कॉल है। यस, तो ध्यान दो, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल था, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पीड, राइट। तो इसका होता क्या है समझ लो यार, लो सिस्टम रिसोर्सेस में अफेक्ट योर ऑडियो क्वालिटी, ट्राई क्लोजिंग सम एप्लीकेशंस टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। ओके, आई होप माय ऑडियो इज क्लियर, परफेक्ट। यस सर। ओके, सो सी इको वगैरह कुछ हो रहा है तो बोलो, मेरे पास वो माइक भी है तो मैं वो कनेक्ट कर सकता हूँ। कॉन्सेप्चुअल, ओके, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देखते हैं। स्पीड ऑफ, एक मिनट, यूजुअल केस और न्यू केस, यूजुअल केस और न्यू केस। अभी ध्यान दो, वॉकिंग एट 5/7 ऑफ यूजुअल, मैंने आपको है ना शायद ये कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बोला था एक चीज, 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड। तो ये यूजुअल स्पीड आप क्या अज्यूम करोगे, क्या अज्यूम करेगा, इजी जाएगा ये फ्रैक्शन को समझना। मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बोला ये चीज, यूजुअल स्पीड हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, कैन आई अज्यूम यूजुअल स्पीड एज 7x? सिर्फ समझ लो, ये 5 सेकेंड का अप्रोच, ये खाली इसको शॉर्टकट है, लेकिन पहले ये थोड़ा एक क्लैरिटी लाते हैं टॉपिक से, राइट, इसका सहारा लेके। कैन आई अज्यूम यूजुअल स्पीड एज 7x ऑफ दिस पर्सन, ऑफ दिस बॉय? यस, इफ आई से, एक सेकेंड, इफ आई से, एकदम अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। यूजुअल स्पीड में अगर 7x अज्यूम करूं उस बॉय का, तो नया स्पीड क्या होगा? नाउ बॉय इज वॉकिंग 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड, so I have considered usual speed as 7x, so the new speed will become 5x, right?
What is ratio of usual speed to new speed? It is 7:5. So tell me, if distance is constant, my speed ka ratio is 7:5. What will be ratio of my time of both the situations, usual and new? क्या रेशियो रहेगा मेरा फिर? बोलो. If my speed ka ratio is 7:5, usual to new, what will be my ratio of time? I know when distance is constant, speed is inversely proportional with time, or time is inversely proportional with speed. Very good, Shruti. If speed ka ratio is 7:5, time ka ratio will be 5:7. Okay. What does this mean? What does this mean? This means if you take 5k minutes in usual case, if you take 5k minutes, in new case you would take 7k minutes. इसका मतलब ये होता है, अगर यूजुअल केस में आप उस बॉय को 5k मिनट्स लग रहे, तो नए केस में उसको लगेंगे 7k मिनट्स, राइट? मतलब, एंड क्या दिया एज पर द क्वेश्चन, he reaches 6 minutes late to his office because of this change in the speed, right? मतलब what is difference between new time and usual time? क्या डिफरेंस है? ये 7k मिनट्स और 5k मिनट्स में डिफरेंस कितना है? एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 6 मिनट्स का, राइट? एंड ये 2k इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू 3. इफ k इज इक्वल टू 3, यूजुअल में उसको 5 इंटू 3 15 मिनट्स लग रहे, और नए केस में 7 इंटू 3 21 मिनट्स लग रहे. Yes or no? The boy is taking 6 minutes extra because of change in the speed. उसने उसका स्पीड 5/7 ऑफ यूजुअल किया, मतलब उसने स्लो चलाया, वो स्पीड उसने स्लो किया, इसलिए उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए उसको ज्यादा टाइम लग रहा है. अंडरस्टूड दिस मेथड? बोलो, इज दिस मेथड क्लियर? एकदम अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि हमें ये पता था कि इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्पीड, राइट? तो ये कैसे सॉल्व किया, क्या क्या है, होप एवरीवन अंडरस्टूड. कि फिर हमने क्या किया कि स्पीड का रेशियो 7:5. कैसे है स्पीड का रेशियो? 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड. तो आप क्या करो, ये यूजुअल मतलब ये ओरिजिनल होता है, डिनोमिनेटर कभी भी आपका बेस होता है, ओरिजिनल होता है, राइट? ये तो हमने 7, अगर यूजुअल स्पीड है तो नया स्पीड उसका 5 हो जाएगा. तो यूजुअल 7 है तो नया 5, 7:5. तो टाइम का रेशियो विल बी 5:7. तो उसको 5 के मिनट्स लग रहे हैं यहाँ पे, तो इसको 7 के मिनट्स लगेंगे यहाँ पे. मतलब that difference is equal to 6 minutes as per the question, and we got the value for k, right? Let us understand this 5 seconds approach. जब भी आपके जिंदगी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वॉकिंग एट 5/7 ऑफ यूजुअल स्पीड और वॉकिंग एट 7/3 ऑफ यूजुअल स्पीड, कभी कभी वो स्पीड बढ़ा भी सकता है, तो उस केस में वो जल्दी पहुंचेगा, लेट नहीं अर्ली पहुंचेगा, ठीक है? ऐसे कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस हो, एंड इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम अगर आपको पूछा है, तो आप सिंपली क्या करना, न्यूमरेटर न्यूमरेटर इनटू जो भी जो भी कम ज्यादा टाइम लग रहा है ना, न्यूमरेटर इनटू जो भी कम ज्यादा टाइम लग रहा है, वो अपॉन अपॉन ये दोनों का डिफरेंस, राइट? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या है? 5 और 7 का डिफरेंस 2. दिस विल बी योर यूजुअल ट्रैवल टाइम. क्या क्या मैंने, जो भी न्यूमरेटर होगा यहाँ पे, वॉकिंग एट 5/7, वॉकिंग अप 7/3, वॉकिंग एट 8/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, व्हाटएवर, न्यूमरेटर इनटू जो भी कम ज्यादा स्पीड है, अगर उसने स्पीड बढ़ा है तो वो कम कम टाइम में पहुंचेगा, व्हाटएवर इट इज गिवन, कम ज्यादा स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. दिस विल बी योर यूजुअल ट्रैवल टाइम, which is 15 minutes. Clear? Clear? बोलो.
ओके चल जाएगा, ट्राई दिस। काफी इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ स्टोरी के साथ जाओ, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो लर्निंग फेज में, एकदम पीसफुल माइंडसेट से ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस। लेट्स सी, a train covered 180 kilometers in 4 hours। सो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, राइट। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास डिस्टेंस से टाइम में क्या निकाल सकते हैं, बोलो। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 180 किलोमीटर को 4 घंटे लग रहे हैं। स्पीड हम निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच इज 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सॉरी 45 किलोमीटर पर आवर, ये आपका स्पीड है। नाउ इट ट्रेवल्स विथ 2/3 ऑफ यूजुअल स्पीड, ये उसका यूजुअल स्पीड था 45 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो 180 किलोमीटर के लिए 4 घंटे ले रहा था। अभी 2/3 ऑफ यूजुअल स्पीड, ये स्पीड से चल रहा है। अभी वो 2/3 ऑफ यूजुअल स्पीड से चल रहा है, मतलब कितने स्पीड से चल रहा है वो, कितने स्पीड से चल रहा है बोलो, कौन से स्पीड से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। Then find extra time to cover the same distance, which distance, 180 kilometers। So time is equal to इतना डिस्टेंस चलना है, बट नाउ विद दिस रिड्यूस्ड स्पीड कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे टोटल लगेगा। हमें टोटल टाइम नहीं पूछा है, वी आर आस्क्ड व्हाट इज एक्स्ट्रा टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अभी 6 घंटे लग रहे हैं, सो एक्स्ट्रा टाइम इज 2 घंटे। अंडरस्टूड, इज दिस क्लियर, बोलो। मैं फिर से रिकैप कर रहा हूं क्विकली, देखो। अ ट्रेन कवर्ड 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, सो इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, मतलब स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हो रहा है 45 किलोमीटर पर आवर। नाउ द पर्सन इज ट्रैवलिंग विद 2/3 ऑफ यूजुअल स्पीड, सो 2/3 ऑफ यूजुअल स्पीड, मतलब अभी वो ट्रेन ट्रैवल हो रहा है 30 के स्पीड से, 30 के स्पीड से ट्रैवल करेगा। टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस उसको कितना टाइम लगेगा विद दिस स्पीड, 180 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए विद 30 के स्पीड से उसको 6 घंटे लगेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। हमें पूछा कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिड्यूस्ड स्पीड, 4 घंटे पहले लग रहे थे, अभी लग रहे हैं 6 घंटे, मतलब उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ द क्वेश्चन वाज, राइट। आई होप यू आर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट। हमने क्या देखा, हमने देखा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला कैसे बना जाता है, कि मैं अगर 60 के स्पीड से 3 घंटे चलूंगा तो 180, उसके हिसाब से वी गॉट द फॉर्मूलाज। वी सॉ मीटर्स पर सेकंड कैसे कन्वर्ट होता है किलोमीटर्स पर आवर में, किलोमीटर्स पर आवर कैसे कन्वर्ट होता है मीटर्स पर सेकंड में, दैट वी सॉ। देन वी टुक सम दो तीन क्वेश्चंस हमने लिए, एंड देन वी सॉ अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड कैसे इनवर्स होता है टाइम से, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद स्पीड, time is constant so distance is directly proportional with speed and on so on। we took couple of questions also, and now ये और एक क्वेश्चन है, चलो ले लो। ये इजी क्वेश्चन लग रहा है, ट्राई दिस।
Very good, Aishwarya. Very good. Let's see if it is true. Uh, car travels a distance of 250 kilometers. Okay. In the same time, another car covers a distance of 350 kilometers. Find the ratio of their speeds. Time is constant, right? ये एक कार जो है वो 250 किलोमीटर चल रहा है, दूसरा कार इन द सेम टाइम 350 किलोमीटर चल रहा है. तो जाहिर सी बात है कि ये कार का स्पीड ज्यादा होगा, बराबर. ये कार का स्पीड ज्यादा होगा, मतलब देयर स्पीड्स विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन टाइम इज कांस्टेंट. व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, राइट, speed is directly proportional with distance traveled, right? When time is constant, speed is directly proportional with distance constant, or distance is directly proportional with speed constant, right? So ये जो distance का रेशियो, इसका मतलब क्या हुआ, जो distance का रेशियो है वही speed का रेशियो होगा, जो speed का रेशियो है वही distance का रेशियो होगा, राइट? समझ रहे हैं ना? व्हेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वो जो रेशियो वही होगा, सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन में वो उल्टा हो जाता है रेशियो, दैट्स इट, राइट? ये गया गया 5 5 of 25, 5 7 is this is the ratio of speed also and ratio of distance also, because speed is directly proportional. वो अगर ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है मतलब उसका ज्यादा स्पीड है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? मतलब इसका स्पीड अगर 5x किलोमीटर पर आवर होगा, इसका 7x किलोमीटर पर आवर. अंडरस्टूड? क्लियर? बोलो. ओके, ग्रेट. चलते आगे. So we'll understand what is average speed. Again, an important concept in time, speed and distance. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो, हम जब भी कोई ट्रैवल करते हैं ना, हम कोई 200-300 किलोमीटर ट्रैवल कर दे तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि मैंने लेट से 200 किलोमीटर चला है, 200 किलोमीटर चला है, और मैंने वो 4 घंटे में ट्रैवल कर लिया. 200 किलोमीटर मैंने 4 घंटे में ट्रैवल किया. सो व्हाट इज माय एवरेज स्पीड? What is my average speed? It is 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो अभी ध्यान दो, ये जब हम 200 किलोमीटर चलते हैं ना, ये ऐसा नहीं होता है कि हमारा स्पीड जैसे 50 का होता है इधर से स्टार्ट से तो उधर तक 50 का एकदम कंसिस्टेंटली चल रहा है, ऐसा नहीं होता है. कभी कभी रास्ता खराब आता है, ट्रैफिक लगता है वगैरह, सब चीजें होती है. बट वी टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, राइट? कि टोटल डिस्टेंस हमने 200 चला है और टोटल टाइम वी टू 4 आवर्स. सो ऑन एन एवरेज वी ट्रेवल्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर. कभी कभी स्पीड कम ज्यादा भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन एवरेज स्पीड ही हम लोग बोल रहे हैं, राइट? सो फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड बिकम्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट? तो इसके ऊपर बेसिक के ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दो. कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्वेश्चन भी क्लियर होगा. देखो, अगर देयर आर लेट से 2 cities, सिटी ए, सिटी बी, सिटी सी, राइट? यहाँ पे अगर आपका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स एंड हियर योर डिस्टेंस इज लेट से 200 किलोमीटर्स, राइट? यहाँ पे आपका स्पीड है 30 किलोमीटर्स पर आवर का, लेकिन बी टू सी आपका रास्ता अच्छा है तो यहाँ पे आपका एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर्स पर आवर. इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर एवरेज स्पीड, व्हाट इज योर एवरेज स्पीड ड्यूरिंग एंटायर जर्नी और फ्रॉम ए टू सी, ड्यूरिंग एंटायर जर्नी कितना एवरेज स्पीड है? क्या होगा बोलो? ट्राई ट्राई करो, बहुत इजी है बट थोड़ा सोचो. शायद डेसिमल में कुछ आ सकता है, नो इश्यूज.
यस, क्या होगा? सब आपके सामने। टोटल डिस्टेंस कितना लग रहा है? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी कितना है? टोटल डिस्टेंस कितना है? 260 किलोमीटर्स। ठीक है, अभी टोटल टाइम निकालना है। तो आप सीधा देखो कि फ्रॉम ए टू बी कितना टाइम लगेगा। फ्रॉम ए टू बी कितना टाइम लगेगा? 60 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रॉम ए टू बी द पर्सन विल टेक 2 hours, एंड फ्रॉम बी टू सी 200 किलोमीटर का स्पीड, ये इट इज किलोमीटर डिस्टेंस है। 200 किलोमीटर का डिस्टेंस चलने के लिए 50 का स्पीड है, मतलब फ्रॉम बी टू सी उस बंदे को कितना टाइम लगने वाला है? 4 hours। इज दिस क्लियर? सो व्हाट इज टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग एंटायर जर्नी? टोटल टाइम टेकन ऑफ द एंटायर जर्नी कितना है? अरे बोलो ना, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? अरे कुछ प्रॉब्लम हो गया? Yes, sir, audible. अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वो कुछ प्रॉब्लम होता है इसको। शिट, देयर वाज सम इशू, नेटवर्क इशू वाला कुछ। ठीक है,
I hope I'm audible now. Yes, sir. एक्चुअली नेटवर्क इशू नहीं था, ये लैपटॉप का कुछ इशू, मैंने आज लैपटॉप चेंज किया, वो थोड़ा पुराना कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए थोड़े प्रॉब्लम है। ओके, अच्छा मैं ये एक्सप्लेन किया था मैंने पूरा, ये सुना क्या आपने? ओके ठीक है, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 260 किलोमीटर्स। टाइम कितना लगा? 2 घंटे, और यहाँ पे 4 घंटे, मतलब टोटल टाइम लगा 6 आवर्स, राइट? सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? 2 3 are 6, 2 130 is this, so 130 by 3 kilometers per hour, राइट? या तो आप डेसिमल में आएंगे तो 3 4 12 बचा 1, 339.33 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर? इज दिस क्लियर? बोलो। अरे ये कुछ स्लो हो रहा है, लैपटॉप है ना, मैंने गलती से इसको क्यों लिया पता नहीं आज। Okay, so there is a special case also. There is a special case also. See, एवरेज स्पीड में ये दो केसेस होते हैं, एक तो हमने अभी देखा ये, और एक स्पेशल केस। मतलब क्या, ध्यान दो, इधर ध्यान दो अच्छे से, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये लेट से point C. If I tell you that this distance is equal to this distance, and speed from A to B is x kilometers per hour, and that of B to C is y kilometers per hour. अगर मैं ऐसा बोलूं, and if I ask you what is average speed, what is average speed from A to C, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो आपका सीधा फॉर्मूला होता है, whenever दो स्ट्रेचेस में दो रास्ते अगर सेम डिस्टेंस के हैं, एक रास्ते पे स्पीड x किलोमीटर पर आवर का है, दूसरे रास्ते पर स्पीड y किलोमीटर पर आवर का है, राइट? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस 5। दिस बिकम्स योर एवरेज स्पीड। वहां पे आपको एक्चुअल डिस्टेंस के वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? एक्चुअल डिस्टेंस के वैल्यू की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, सो यू गेट बेटर आइडिया, ठीक है? चलते क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत स्लो हो गया यार, क्या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ इसको? हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या हुआ होगा? बहुत स्लो चल रहा है। कल से मैं आई विल नॉट यूज दिस लैपटॉप एनी मोर नाउ। ओके, सो सी हियर, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो। We'll end this class after this concept average speed, and tomorrow we'll be continuing with the same topic, time, speed and distance, ठीक है? ये बहुत स्लो, मेरी तरफ से बहुत स्लो रहा है। ये लैपटॉप का प्रॉब्लम है, ये इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सट्रीम का। अच्छा, मैं ऑडिबल? एक बार कंफर्म करो, और क्वेश्चन आप कर रहे हो ये कंफर्म करो। ओके ठीक है। Find the average speed of Sam who covers first 200 kilometers in 4 hours and next 160 kilometers in another 4 hours. ओके, तो एवरेज स्पीड चाहिए। तो वी नो एवरेज स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है बोलो. फर्स्ट 200 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 160. सो टोटल डिस्टेंस हो रहा है 360 किलोमीटर. टोटल टाइम कितना ले रहा है वो सैम. यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पे 4 घंटे, टोटल ले रहा है 8 घंटे का टाइम. ठीक है. सो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 बचा 4, ये 40 हुआ. 8 5 45, 8 5 40. सो 45 kilometers per hour becomes our average speed. Clear? Is this clear? बोलो. अच्छा मुझे एक बात बोलो, कल के और आज के ऑडियो क्वालिटी में कुछ डिफरेंस है क्या? कल मतलब जो रेगुलर हम ऑडियो क्वालिटी रहता है और आज का कुछ डिफरेंस है क्या? नहीं कुछ. वॉइस ब्रेक होता है सर. वॉइस ब्रेक होता है ना, वो ये लैपटॉप का ना कॉन्फ़िगरेशन का कुछ झोल है, तो ठीक है, कल से विल यूज दैट ओनली. A train is moving with a speed of 80 miles per hour for the first 4 hours and 110 miles per hour for the next 3 hours. Find the average speed of the train with the help of average speed formula. Whatever. Do it quickly. कुछ नहीं क्वेश्चन. अच्छा the question will be miles per hour. Options will be miles per hour. So आपको conversion वगैरह का टेंशन नहीं कुछ. Very good Devansh. Let's see. A train is moving with a speed of 80 miles per hour for the first 4 hours. Okay. 80 चल रहा है 4 घंटे, 110 चल रहा है 3 घंटे. यहाँ पे क्या है समझ लो. Is this a distance? Tell me. Is this a distance? 80 miles ये distance है क्या? नहीं, ये speed है. हाँ, वो 4 घंटे अगर इतना 80 miles चला है मतलब वो 320 का डिस्टेंस चला है यहाँ पे. 110 माइल्स पर आवर के हिसाब से 3 घंटे चला है मतलब 330 का डिस्टेंस यहाँ पे चला है. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 650 माइल्स. 650 माइल्स चला है. और टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल दिस टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हो गया. अभी टोटल टाइम चाहिए. 4 घंटे यहाँ पे चला, 3 घंटे यहाँ पे चला, 7 घंटे चला, तो ये आ जाएगा 7963 और अप्रोक्सीमेटली 93 माइल्स पर आवर इज योर आंसर. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड. देखो घाई घाई में ये मत कर देना कि ये डिस्टेंस पकड़ लेना. राइट, हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस. ये तो स्पीड दिया हुआ है, लेकिन वी ऑल्सो हैव टाइम एंड स्पीड, तो हम डिस्टेंस निकाल लिए. राइट, तो डिस्टेंस इस केस में इतना लगा, इस केस में इतना लगा. टोटल डिस्टेंस द ट्रेन ट्रेवल्ड इज 650. टोटल टाइम टुक is 4 plus 3, 7 hours, and so the average speed will become around 93 miles per hour, slightly less than that. Understood? Clear everyone? बोलो. Okay, great. एक मिनट.
देखते, the speed of the train going from Nagpur to Allahabad is 100 kilometers per hour, while its speed is 150 kilometers per hour when coming back from Allahabad to Nagpur. Okay. Then the average speed during the whole journey is. Tell me, excuse me, see here, Nagpur and Allahabad. So train is going towards this, right? तो ये चला है 100 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से एंड रिटर्न्स बैक. देखो ये डिस्टेंस चला है इतना, फिर रिटर्न्स बैक टू दिस नागपुर विद द स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर्स पर आवर. अभी हमारे पास डिस्टेंस है क्या, कितना डिस्टेंस चला इसका इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास, बोलो. नहीं है, ठीक है. लेकिन ये एक चीज हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस चला है ऑनवर्ड्स, राइट, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, राइट. हमें पूरा एवरेज स्पीड चाहिए लाइक दिस एंड दिस. नाउ वी ऑलरेडी नो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. व्हेन डिस्टेंस ऑफ टू केसेस आर इक्वल एंड दोनों के स्पीड्स हमें दिए हुए, वी ऑल्सो हैव दैट अदर फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस y, राइट. व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ डिस्टेंस की जरूरत नहीं. फिर अगर डिस्टेंस इक्वल है दोनों केस में तो कितना वैल्यू डिस्टेंस का जरूरत ही नहीं. 2 इंटू एक्स का वैल्यू 100, ये 150, ये हो जाएगा 250. x प्लस y 100 प्लस 150 250, राइट. 0 गया 0 गया, 25 1 25 4, 15 इंटू 4 60, 60 इंटू 2 120. वेरी गुड, दोज हु हैव गिवन द आंसर. 160 kilometers per hour will be your answer. Understood? Clear everyone? Everyone clear with this? बोलो. आदित्य देखो, मैं Yes, sir. रिकैप कर रहा हूँ. देखो क्विकली मैं रिकैप कर रहा हूँ इसको. देखो 120 आया ना, 120 आया, तो मैंने कुछ अलग लिखा था क्या? Oh, I'm sorry. Shit. 120. 120. Calculation नंबर ये हो गया होगा. 120 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है. ओके. सो बिफोर हम कल ही ये रिलेटिव स्पीड एंड प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स करेंगे, लेकिन उससे पहले